اگر آپ چاہتے ہیں کہ لکی مروت جیسے شہر میں جہاں پر کھیلنے کودنے کے لیے میدان کوئی نہیں ہے، اور پہلے بہت زیادہ فٹ بال کرکٹ وغیرہ کے لیے بہت زبردست میدان ہوا کرتے تھے، لیکن اب ایک جو کاروان کرکٹ گراؤنڈ ہے اس کے علاوہ کوئی اور ایسا خوبصورت گراؤنڈ نہیں ہے۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایک دن کے لیے سیر سپاٹے کے لیے کہیں پر چلا جائے بندہ، تو میرے خیال میں خرخوڑئی ایک ایسی جگہ ہے جو کہ بہت ہی خوبصورت ہے، اور ایک دن کے سیر کے لیے وہ بہت ہی خوبصورت جگہ ہے۔ خرخوڑئی اصل میں چشمہ درتنگ روڈ پہ واقع ایک گاؤں ہے چھوٹا سا، جس میں تقریباً 25-30 گھر ہوں گے۔ تو یہ جو علاقہ ہے یہ بہت زیادہ خوبصورت ہے، اور یہاں پر بہت زبردست ایک گھنا جنگل ہے، اور اس جنگل میں لوگ شکار کے لیے آتے ہیں اور مختلف قسم کے جانوروں کا اور آبی پرندوں کا اور مختلف اور پرندوں کا یہاں پر شکار کرتے ہیں۔ تو آپ جیسے ہی درتنگ پہنچتے ہیں تو آپ نے درتنگ یعنی کہ جو درتنگ کا علاقہ ہے جو کہ پنجاب کی باؤنڈری ہے، وہاں پنجاب کی طرف نے نہیں جانا، آپ نے چشمے جو درتنگ سے چشمہ کو روڈ جاتا ہے، آپ نے اس روڈ کی طرف مڑ جانا ہے۔ یہ علاقہ یہاں سے لکی مروت کا پورا علاقہ آپ کو بہت خوبصورت منظر پیش کرتا ہے اور بہت خوبصورت نظر آتا ہے، اور جب بہار کا موسم ہو تو پھر تو بہت ہر طرف سبزہ ہی سبزہ ہوتا ہے۔ یہاں پر جو روڈ بنی ہوئی ہے جو چشمہ کی طرف جاتی ہے، وہ روڈ بہت خوبصورت روڈ ہے اور بہت پیاری روڈ ہے یہ۔ لیکن اگر میں آپ کو بتاؤں کہ لکی مروت سے یہ جو خرخوڑئی علاقہ ہے، یہ لکی مروت ڈسٹرکٹ لکی مروت میں آتا ہے، اور یہ اس کا جو راستہ ہے وہ تقریباً آپ کو 40 منٹ یہاں پر آپ کو لگیں گے گاڑی میں، اور یہ اگر کلومیٹر میں دیکھا جائے تو 30-35 کلومیٹر سے یہ زیادہ نہیں ہے۔ یہ علاقہ بہت خوبصورت ہے، یہاں پر مختلف قسم کے وانڈا جات ہیں، یعنی کہ یہاں پر آپ تھوڑا سا آگے جائیں گے خرخوڑئی سے تو وانڈا میرالم آپ کو نظر آ جائے گا، اور اس کے سامنے بالکل مختلف قسم کے وانڈا جات ہیں، جیسے بارو وانڈا ہے، دلوتی وانڈا ہے، اور نظامی وانڈا کو یہ روڈ جاتا ہے۔ تو یہ بہت پیارا علاقہ ہے۔ یہاں پر لوگوں کی جو رہن سہن ہے وہ بالکل یعنی کہ غریب لوگ ہیں یہاں پر، تو وہ لوگ جو ہے نا یہاں پر مال مویشی زیادہ پالتے ہیں، اور ان کا گزارا ہی مال مویشیوں پر ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ یہاں پر جو سب سے بڑی صنعت ان کی ہے وہ ہے ایگریکلچر، یعنی کہ زراعت ہے۔ یہاں پر لوگ مختلف قسم کی فصلیں یہاں پر بوتے ہیں، لیکن زیادہ تر یہاں پر جو ہے گندم اور چنے کی فصل ہوتی ہے۔ یہ علاقہ بہت خوبصورت ہے، اور یہ ایک شکارگاہ ہے جیسے کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں۔ تو یہاں پر اس شکارگاہ میں مختلف قسم کے جنگلی خطرناک جانور ہوتے ہیں، جیسا کہ یہاں پر بھیڑیا اور گیدڑ اور لومڑ، اور اس کے علاوہ یہاں پر پگ یعنی کہ خنزیر بھی یہاں پر پایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ یہاں پر آبی پرندے یعنی کہ اگر مرغابی، مگ، بٹیر، تیتر وغیرہ یہاں پر اس کا شکار ہوتا ہے۔ یہاں پر جو بلین ٹری ایک پروجیکٹ تھا فارسٹ ڈپارٹمنٹ کا، تو اس کے تحت یہاں پر افارسٹیشن ہوئی ہے، اور مختلف قسم کے یہاں پر پوداجات لگائے گئے ہیں یہاں پر، جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ رات کے کھانے کی تیاری ہو رہی ہے اور بچے اس کا انتظار کر رہے ہیں۔ بہت ہی پیارا علاقہ ہے، ایک دن کے ٹور کے لیے، ایک دن کے سیر سپاٹے کے لیے بہت ہی خوبصورت علاقہ ہے، اور بہت زبردست یہاں پر آپ کو سکون ملے گا، کیونکہ کوئی نہ رکشے کی آواز، نہ موٹر سائیکل کی، نہ کسی اور گاڑی کی۔ تو یہ ایک دن کے لیے یہ بہت پیارا علاقہ ہے۔ جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں نیچے یہ بلین ٹری کا ایک خوبصورت جنگل بنا ہوا ہے، جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ پہلے یہاں پر اس کے نیچے جو ہے نا یہاں بالکل جیسے کہ آپ کو نظر آیا یہاں پر پانی بہتا تھا، تو اب جو ہے نا وہ پانی بہت پیچھے چلا گیا اور یہاں پر ایک گھنا جنگل بن گیا ہے۔ تو اب اور بھی جو ہے مائیگریٹری برڈ جو ہیں یہاں پر آتے ہیں، جیسے کہ بٹیر اور تیتر اور مرغابی ہو گیا، مگ وغیرہ، یہاں پر لوگ پھر شکار کھیلتے ہیں۔
तो अभी तो शिकार का टाइम है नहीं, लेकिन फिर भी ये इलाका सैर सपाटे के लिए बहुत खूबसूरत है। यहाँ पर लोगों ने मुख्तलिफ़ किस्म के अपने तौर से लोगों ने कैंपिंग की होती है, या फिर मतलब एक किस्म का इन्होंने अपने लिए एक छोटा सा कमरा बनाया होता है, कच्चा सा कमरा होता है, जिसमें तकरीबन 10 से 15 लोगों के रहने की जगह होती है। क्योंकि ये लोग जब शिकार के लिए आते हैं तो ये ज़्यादा होते हैं, 10 होते हैं, 5 भी होते हैं, कभी 7 मुख्तलिफ। यहाँ पर एक तो ये है कि नोमैड्स यानी कि जो महाजर हैं अफ़गानिस्तान के, वो भी यहाँ पर रहते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर माल मवेशी यहाँ पर पालते हैं। थोड़ा सा जो है यहाँ इस इलाके से थोड़ा सा आगे इनके जो है ना कैंप्स हैं, और ये यहाँ पर जो है ना चरागाह है इनकी, भेड़ बकरियाँ भी यहाँ पर ये पालते हैं। कभी कभी इन पर भेड़िया जो है वो हमला कर देता है, और इनकी कई जो है ना इनकी बकरियाँ वो बिल्कुल वो मार देता है यहाँ पर। तो इन बेचारों को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है इससे। लेकिन फिर भी इनके जो अपने पास इनके जो कुत्ते होते हैं वो भी बड़े पावरफुल और ताकतवर हैं, और इनको ऐसे ख़तरनाक जानवरों से इनको बचाते हैं। ये जो आप देख रहे हैं आगे जो ये बच्चा जा रहा है, ये यहाँ पर एक हेलीपैड बना हुआ था। तो एक मौका था जब वो वज़ीर आज़म इमरान ख़ान वो यहाँ पर इनका विज़िट ड्यू था, क्योंकि ये जो बिलियन सुनामी जो ट्री बिलियन वो है, ये एक प्रोजेक्ट यहाँ पर इन्होंने हेलीपैड बनाया हुआ था फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोगों ने। तो यहाँ पर वो हेलीपैड अभी भी मौजूद है, और हेलीपैड पे चढ़ने के बाद आप पूरा इलाका वाज़े तौर पर देख सकते हैं। और ख़ासकर जब बारिश हो चुकी हो तो ये इलाका बिल्कुल साफ़ नज़र आता है, क्योंकि कोई गर्द और कोई गर्द गुबार नहीं होता। और यहाँ पर जंगली मुख्तलिफ़ किस्म के जंगली फूल भी होते हैं। और यहाँ पर जो एक बहुत ज़बरदस्त बात है वो ये है कि यहाँ पर आपको मिसवाक, बहुत ज़बरदस्त मिसवाक यहाँ पर आपको मिल जाएगा। यहाँ पर मिसवाक के बहुत ज़बरदस्त वो जो सफ़ेद मिसवाक होता है, तो इसके पौधे यहाँ पर हैं। तो जैसे ही आप इस चढ़ाई को अबूर करते हैं तो आपको फ़ौरन ही हेलीपैड आपको नज़र आ जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये हेलीपैड है, और वज़ीर आला साहब तो तशरीफ़ नहीं लाए परवेज़ खटक, लेकिन अब ये जो जगह है यहाँ पर बच्चे और जवान आते हैं यहाँ पर, और सोबत का यहाँ पर प्रोग्राम होता है। सोबत मरवत हमारे लकी मरवत के इलाके की एक खूबसूरत डिश है, और बहुत ज़बरदस्त है और बहुत मशहूर डिश है। आजकल बहुत यानी कि इस्लामाबाद वगैरह में आपको मिल जाएगी, और DI खान में, और ख़ासकर पर ये गंडपुर के इलाके की भी बहुत मतलब बहुत खाने वाली और जानने वाली डिश है। लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं इसको। और मौलाना फजल रहमान साहब उनको उसने विज़िट किया था सुहेल वड़ाइच ने। तो जब किसी ने इससे पूछा कि आपको इसमें सबसे ज़्यादा किसका खाना आपको पसंद आया, तो सुहेल वड़ाइच साहब ने मौलाना फजल रहमान साहब का जो उन्होंने जो पेंडा उनको खिलाया था इनकी सोबत, तो वो बहुत उनको पसंद आई। ये देखें, ये सारा इलाका आपको नज़र आएगा। ये बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त जंगल है यहाँ पर, और इसमें ही वो सारे जानदार और जंगली जानवर वगैरह आपको नज़र आ जाएंगे अगर आप इसमें जाएंगे नीचे। इसलिए जब भी आप यहाँ पर आएँ तो अपने साथ शिकार की जो बंदूक है, वो जो जितने भी लवाजमात हैं शिकार, वो आप लेकर आएँ, बूट वगैरह पहन कर आएँ, क्योंकि यहाँ पर सांप और भी मुख्तलिफ़ किस्म की ऐसी अशिया आपको नज़र आ जाएंगी जो ख़तरनाक है। तो बंदूक अगर आपके हाथ में होगी तो फिर कम से कम अपना दिफा तो आप कर सकेंगे। और ये बिल्कुल पंजाब की बाउंड्री के ये करीब इलाका है, और इसके थोड़ा सा आगे आप जाएंगे तो वांडा मीरा लमी आपको नज़र आएगा, और वांडा मीरा लमी से फिर आप थोड़ा सा आगे जाएंगे तो आपको लकी मरवत का जो कैडेट कॉलेज है, जो कि अभी बन रहा है, अंडर कंस्ट्रक्शन है, और निस्पाक जो है उसका वो कंस्ट्रक्शन कंपनी है वो इसको बना रही है। ये यहाँ पर ये देखें महाजर, जहाँ पर जो हमने हमारे जो दोस्त हैं इन्होंने
यहाँ पर एक पानी का इंतज़ाम किया हुआ है, एक नलका लगाया है। तो यहाँ पर जितने भी ये महाजर की छोटी छोटी बच्चियाँ यहाँ पर से ये पानी लेकर जाती हैं, आप देख रहे हैं इस तरह। और ये बहुत खूबसूरत मंज़र है, यहाँ पर बहुत प्यारा मंज़र है। और आप जो भी यहाँ पर आएगा इस इलाके को खूब इंजॉय करेगा। बहुत मेहनती लोग हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। और अब जो है ना, इनके जाने का वैसे टाइम आ गया है। अब ये जाएंगे सर्द इलाकों की तरफ, क्योंकि जब भी गर्मी की आमद होती है तो इनके काफ़िले आपको रास्ते में नज़र आएंगे। और फिर ये जाते हैं जनूबी वज़ीरिस्तान की तरफ, यानी साउथ वज़ीरिस्तान की तरफ जाते हैं, और मीरानशाह की तरफ जाते हैं, यानी कि शुमाली वज़ीरिस्तान की तरफ भी जाते हैं। तो ये जो हमारे दोस्त हैं किफ़ायतुल्लाह साहब, ये सोबत का प्रोग्राम बना रहे हैं। अब देखते हैं कि वो क्या बनाते हैं, सोबत बनाते हैं या फिर उसको चिकन कढ़ाई का वो है प्रोग्राम है इनका। ये बाबा कह रहा है कि मैंने हलवा बनाया है, तो मैं हलवे जो है ना हलवा लेकर आता हूँ, आप उनको देखें, बहुत प्यारा मैंने बनाया और बहुत मीठा है और बहुत अच्छा बनाया है। बाबा ने हलवा ले आया। हलवे वाला बाबा। खाना बना रहे हैं, खाना तकरीबन तैयार है। बच्चे भी अब जो है ना हेलीपैड से उतर के आ गए, थक चुके हैं और खाने का इंतज़ार कर रहे हैं। शाम होने वाली है, शाम की नमाज के फौरन बाद खाने का प्रोग्राम होगा इंशाअल्लाह। बहुत प्यारा दिन है आज, ना ज़्यादा सर्दी है और ना गर्मी है, मौसम भी बड़ा प्यारा है। तो ये मौसम जो है ये मार्च यहाँ पर आने के लिए मौसम है। वैसे तो ये तकरीबन सारा साल यहाँ पर आते रहते हैं, सख्त सर्दियों में भी आते हैं, क्योंकि सख्त सर्दियों में फिर अपना मज़ा है। अभी आप देख रहे हैं कि ये देसी मुर्ग़ की जो है ना कढ़ाई ने बनाई है, और साथ में जो है ना तंदूर की सुर्ख गंदम की रोटियां हैं, कड़क ज़बरदस्त रोटियां हैं। और ये दही से बनी हुई चटनी है जो कि बहुत ज़बरदस्त होती है। और ये देखें, और बच्चे जो है इतना यहाँ पर खाना खा लेते हैं कि घरों में इतना नहीं खाते, लेकिन यहाँ पर आके बहुत ज़्यादा ये एंजॉय करते हैं बच्चे यहाँ पर आके। तो बड़ा प्यारा आज का दिन गुजरा है। और आपसे भी मेरी रिक्वेस्ट है कि ज़ैन मरद TV टॉप 10 को